ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں ایک مولوی کے گھر کرائے پر رہتا تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں جو پردہ کرتی تھیں۔ جب ایک دن دروازے پر دستک ہوئی اور مولوی کی ایک بیٹی گھر کے اندر آ گئی اور میرے پاؤں پکڑ کر بولی، مجھے چھپا لو، میرے ابا ہمیں مار رہے ہیں۔ میں نے اسے کمرے میں چھپا لیا اور خود باہر چلا گیا۔ رات جب گھر لوٹا تو سمجھا وہ چلی گئی ہوگی، پر ہوش تب اڑ گئے جب اس کی 3 بیٹیوں کو دلہن بنے اپنے کمرے میں۔ کیف بیٹا بیگ بنا لیا، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے ڈالنے؟ کیف نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا، نہیں امی، سب کچھ ڈال لیا ہے۔ کیف کا تعلق ایک گاؤں سے تھا۔ وہ گاؤں میں BA تک تعلیم حاصل کر سکا۔ گاؤں میں اسے کوئی نوکری نہ مل رہی تھی۔ وہ بہت پریشان تھا کیونکہ بوڑھے والدین اور پھر اپنے سے 3 اور چھوٹے بہن بھائیوں کے خرچے اب والدین کے لیے پورے کرنا آسان نہ تھے، کیونکہ والدین اب بوڑھے ہوتے جا رہے تھے۔ اپنی تھوڑی بہت جو زمینیں تھیں ان پر کاشت وغیرہ کر کے گھر کا آٹا وغیرہ نکل آتا تھا۔ پھر اس کی امی نے ایک بھینس اور چند بکریاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ پھر مرغیاں اس کے علاوہ تھیں جن سے گھر کے لیے دیسی انڈے بھی میسر آ جاتے تھے اور کچھ سیل بھی کر دیتی تھیں۔ اس کے علاوہ بہن بھی سلائی کا کام کر کے کچھ پیسے کما لیتی تھی اور چھوٹی بہن اسکول سے آ کر اماں کے کاموں میں مدد کرتی رہتی تھی۔ بہن نے شوقیہ بلی بھی پالی ہوئی تھی اور کتا بھی رکھا ہوا تھا۔ کیف کا چھوٹا بھائی کہتا، ہمارا گھر چڑیا گھر ہے، کیونکہ چھوٹے بھائی نے کبوتر اور باز بھی رکھے ہوئے تھے اور بڑی بہن نے طوطے بھی پال رکھے تھے اور ان کو بھی دوستوں کو فروخت کر کے پیسے کما لیتے تھے۔ کیف کی ماں نے گھر میں ہی تھوڑے بہت سودے، بسکٹ، سرف وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ عورتیں اور بچے گھر سے ہی آ کر لے جاتے تھے۔ غرض ساری فیملی محنتی تھی اور سب آپس میں بہت پیار محبت سے رہتے تھے اور ہر کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہتے، ایک دوسرے کا کام کر دیتے تھے، کبھی مقابلہ نہ کرتے تھے۔ ان سب میں کیف سب سے سست تھا۔ وہ گھر کا کوئی کام نہ کرتا تھا۔ وہ کہتا، امی آپ نے کیا گھر میں چڑیا گھر بنا رکھا ہے؟ ان سب کا پیشاب پخانہ بھی صاف کرنا پڑتا ہے۔ اپنے سر پہ کام خود بڑھائے ہوئے ہیں، بچے پال پال کر تھکی ہوئی ہیں، اوپر سے ان ڈھیروں چیزوں کو بھی پال کر ہلکان ہوتی رہتی ہیں، خود بھی ہر وقت لگی رہتی ہیں اور ان بچوں کو بھی لگائے رکھتی ہیں۔ ہر وقت آپ کے یا چھوٹی بہن کے ہاتھ میں جھاڑو ہوتا ہے۔ اس کی امی اس کی باتوں کے جواب میں کہتی، بیٹا ان سے ہمیں فائدے بھی تو ملتے ہیں، دودھ سب پیتے ہیں، چائے کے کام آتا ہے، باقی بیچ کر پیسے مل جاتے ہیں، مرغیوں کے انڈے کام آ جاتے ہیں۔ پھر کیسے اس مہنگائی کے دور میں گزارا کریں؟ بچوں کے کپڑے جوتے وغیرہ پورے کریں۔ گھر میں گیس نہ تھی مگر سلنڈر موجود تھا۔ پھر بھی کیف کی ماں لکڑیاں اور گائے کا گوبر وغیرہ جلا کر سلنڈر کی بچت کرتی رہتی۔ کہتی، کیا ضرورت ہے؟ جب لکڑیوں سے گزارا چل جاتا ہے تو اتنا مہنگا سلنڈر کیوں ضائع کریں؟ ان کا سلنڈر کتنا عرصہ چلتا تھا۔ گھر کے صحن میں کیف کی امی نے سبزیاں بھی اگا رکھی تھیں۔ کیف کو گھر والے نواب کہتے تھے۔ اس کو شہر میں رہنے کا شوق تھا۔ اسے گھر کے ان پالتو چیزوں سے الجھن ہوتی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے والدین کو منایا کہ ان کا گاؤں کا ایک رشتہ دار چاچا شہر میں نوکری کرتا تھا۔ کیف اس کے پاس جا جا کر اصرار کرنے لگا کہ اسے شہر میں کوئی اچھی سی نوکری لگوا دو، میں تمہارا احسان نہیں بھولوں گا۔ وہ آدمی اسے سمجھاتا کہ تم فقط BA تک پڑھے ہوئے ہو اور وہاں شہر میں MBA والوں کو نوکری نہیں ملتی۔ ہاں اگر کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرنا چاہتے ہو تو وہ ادھر مل سکتی ہے، پر ادھر تمہیں کرائے پر کمرہ بھی لینا پڑے گا، کھانا پکانا بھی خود کرنا پڑے گا، کپڑے خود دھونے پڑیں گے۔ کیف نے بڑے جوش بھرے انداز میں اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، چاچا میں سب کر لوں گا۔ چچا اس کا رشتہ دار بھی تھا، اس کے بارے میں سب جانتا تھا۔ وہ ہنس کر بولا، پتر جی ادھر والی موجیں ختم ہو جائیں گی، جہاں تمہیں ہاتھ بھی نہیں ہلانا پڑتا اور سارا گھر خدمت کے لیے تیار رہتا ہے، وہاں سارے کام خود کرنے پڑیں گے۔ کیف بولا، چاچا ہوٹل کس لیے بنے ہوئے ہیں؟ چاچا نے ہنس کر جواب دیا، 4 دن تم شروع میں بڑے شوق سے ہوٹل کی کھاؤ گے، 5ویں دن گھر کی ڈھونڈو گے۔ گھر کا پکا کھانا ملنا ایک نعمت ہے، مجھے احساس ہے اچھی طرح سے۔ جب گھر آتا ہوں تو گھر کا کھانا کھاتے ہوئے لگتا ہے کہ جیسے منو سلوا کھا رہا ہوں۔ میری تو مجبوری ہے شہر جا کر نوکری کرنا، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ تجھے شہر کی خاک چھاننے کے لیے شہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے باپ کے ساتھ زمینوں کے کام میں ہاتھ بٹائے گا تو پیداوار بھی بڑھے گی اور آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ مگر کیف نہ مانا تو چاچا بولا،
पुत्र, तुझे नसीहत दिलाने के लिए शहर भेजना ही पड़ेगा। मेरे घर के करीब एक कमरा भी खाली है, तुझे वो दिलवा देता हूँ। और एक कपड़े की दुकान पर सेल्समैन बनना पड़ेगा। बोल करेगा, बहुत मुश्किल काम है। ईदो शबरातों पर रात गए दुकान पर बैठना पड़ता है। कैफ बोला, चाचा बैठा रहूंगा, वैसे भी अकेला हूंगा तो घर आकर भी क्या करूंगा। चाचा ने कहा, ठीक है पुत्र, तेरे अब्बा से बात करता हूँ। कैफ जल्दी से बोला, अब्बा राजी है, मैंने पूछ लिया है। चाचा बोला, पर मेरा तो फर्ज बनता है ना कि किसी का पुत्र शहर लेकर जा रहा हूँ, उनसे खुद पूछकर तसल्ली तो कर लूँ ना। चाचा कैफ के घर आया और कैफ के बारे में बताया कि वो बहुत बेचैन हो रहा है शहर जाने के लिए। तो कैफ की माँ झट फिक्रमंदी से बोली, भाई जी, वो अकेला उधर कैसे रहेगा। चाचा जोर से बोला, ओ भरजाई, कैसी बातें करती हो, लड़के परदेस कोसों दूर मुल्क से बाहर भी तो कमाने जाते हैं। चाचा ने कप उठाते हुए लंबी चुस्की लेते हुए उन्हें कायल करने की कोशिश की। चाचा फिर एक बिस्किट चाय में डुबोते हुए मुंह में डालकर बोला, कैफ कौन सा बच्चा है, फिर मैं भी तो इधर ही हूँगा, पास ही कमरा लेकर दूंगा, क्यों फिक्र करती हो। भरजाई से काका मत बनाओ, अब ये बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। तुम लोगों ने इसको बहुत लाडला रखा हुआ है। घर से कुछ अरसा दूर रहेगा तो उसे घर की कदर भी आएगी, इसकी बस्ती भी दूर हो जाएगी और कुछ घर के कामकाज भी सीख लेगा। कैफ का अब्बा बीवी से बोला, कैफ की माँ फिक्र न कर, चाचा सही कह रहा है, इसे एक बार शहर की हवा खाने दे। अगर हम इसके शौक के आगे बंद बांधेंगे तो फिर ये कोई और रास्ता अपनाएगा। अभी हमें तसल्ली है कि चाचा अपना बंदा है, साथ लेकर जा रहा है। जब अपना बंदा नौकरी भी लगवा रहा है, रहने के लिए किराए का कमरा भी ढूंढ कर दे रहा है, तो फिर नाशुक्री क्यों करती हो। अल्लाह पाक का नाम लेकर चाचा के साथ इसे कल भेज दे। कैफ भी आ गया और माँ बाप को समझाने और यकीन दहानी कराने लगा कि वो वहाँ घर के सारे काम कर लेगा, आप फिक्र ना करो। कैफ के अब्बा ने उसे वार्निंग दी कि अब तू जा तो रहा है ना शहर, पर साल से पहले इस घर से वापस नहीं आ सकता। सबको तूने अपना नौकर बनाया हुआ है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। और साल से पहले वापस आया तो मैं तेरी गांव की किसी लड़की से फौरन शादी करवा दूंगा। बस ये तेरे पास पहला और आखिरी चांस है शहर जाकर अपना शौक पूरा करने का। कैफ की शक्ल बननी शुरू हो गई। अब्बा भी उसे अक्सर डांटता रहता था कि अब बीए तक पढ़ भी चुका है, अब कोई काम धंधा कर, हर वक्त या तो मोबाइल पर लगा रहता है या घर से बाहर आवारा गर्दी करने निकल जाता है। कैफ शक्ल बनाकर बोला, अब्बा मैंने कहा है ना, मैं शहर जाकर नौकरी करना चाहता हूँ, फिर भी आपको यकीन नहीं आता। कैफ का अब्बा फिर गुस्से से गरजते हुए बोला, याद रखना, साल से पहले घर आया तो कोई भी गांव की लड़की मुनासिब लगी तेरी उससे शादी करवा दूंगा। पैसे बेशक तो अपने पास जमा करते रहना, हमें बेशक ना भेजना। जानता हूँ शहर में बहुत खर्चे होते हैं। कैफ ने इस बात में गर्दन हिला दी और उठकर कमरे से बाहर चला गया। चाचा ने खाली चाय का कप मेज पर रखते हुए अपनी चादर कंधे पर डालते हुए कैफ के अब्बा से कहा, ओ छड़ दे यार, जवान औलाद पर इतना गुस्सा चंगा नहीं हुंदा। कहीं घर से नाराज होकर निकल गया तो फिर क्या करेगा, और मैं इधर इसको देखता सुनता रहूंगा। ये साल की शर्त तूने ऐमे ही रख दी, ये नाजुक बच्चा महीना भी इधर गुजार ले तो बड़ी बात है। कैफ की माँ ने भी चाचा की बातों में हाँ मिलाते हुए कहा कि मैं भी इन्हें यही समझाती रहती हूँ कि जवान छोरा है, किसी के सामने से बेइज्जत ना किया करो। इस तरह वो और शर्मिंदा होकर ढीठ होता जा रहा है। कैफ के बाप ने कहा, मैंने साल का इसीलिए कहा है कि इसे घर की कदर अच्छी तरह से आ जाए। चाचा उठते हुए बोला, अच्छा यार मैं चलता हूँ, कल कैफ को तैयार रखना, शाम को निकलेंगे। अम्मी कैफ को आवाजें देते हुए बोली, कैफ पुत्र, चाचा बुला रहा है। कैफ शक्ल बनी हुई भागता हुआ आया। चाचा ने उसकी कमर पर हाथ रखकर कहा, ठीक है जवान, कल दोपहर का खाना खाकर निकल चलेंगे। कैफ आहिस्ता से बोला, सुबह ठीक नहीं जाना क्या। चाचा हंसकर बोला, पुत्र तुझे बड़ी जल्दी पड़ी हुई है, मेरा बस चले तो रात का खाना भी खाकर ही जाऊं, पर क्या करूं, मजबूरी है। फिर वहां जाकर होटल के खाने पड़ेंगे, यहाँ के साग कड़ियाँ वहां नहीं मिलती। कैफ दिल में बुड़बड़ाया, हूँ साग खा खा कर तंग आ गया हूँ, यहाँ के खानों से तौबा। कैफ की माँ ने साग का सालन और देसी घी जब डाला तो कैफ ने एहतजाज किया, अम्मी मुझे नहीं ये खाने, इधर के खाने खा खा कर मैं तंग आया हुआ हूँ। माँ ने घर की बनी हुई मूंगफली भी बैग में जबरदस्ती डाल दी। कैफ जब जाने लगा तो सवाए उसके अब्बा के सब रो रहे थे। कैफ को गुस्सा आया, अरे यार
सब ऐसे रो रहे हो जैसे मैं परदेस जा रहा हूँ। बड़ी बहन बोली, भाई हर वीकेंड पर आया करोगे ना? वो जो पहले ही यहाँ से भागना चाहता था जल्दी से बोला, महीने के बाद चक्कर लगाऊंगा। इसका जी चाह रहा था कि बोले साल बाद ही आऊंगा, तो फिर माँ बहनों ने रोना शुरू कर देना था। छोटा भाई भी रोने लगा। उसे यहाँ से निकलने की जल्दी थी क्योंकि कैफ ने देखा अब्बा बहुत संजीदा लग रहे थे। वो बैग उठाकर जाने लगा तो छोटा भाई बोला, चलो चाचा के घर तक मैं बैग उठाकर ले जाता हूँ। इसके साथ अब्बा भी चल पड़ा। कैफ जब चाचा के घर पहुंचे तो वो भी तैयार खड़ा था। चाचा को उसने सलाम किया तो वो उसे देखकर जोर से हंसकर बोला, हमारा शहजादा तैयार है शहर जाने के लिए। फिर चाचा अब्बा से मिला तो अब्बा कैफ की तरफ भी आया और उसे गले लगाकर मिलने लगा। कैफ की शक्ल बनी हुई थी और नॉर्मल मिला, मगर अब्बा उसे जोर से बींच कर मिला। चाचा ने बाइक स्टार्ट की और उसे पीछे बैठने को बोला। कैफ जल्दी से पीछे बैठ गया। चाचा ने कैफ के अब्बा की कमर थपथपाते हुए कहा, परेशान ना हो यार, कैफ बच्चा नहीं है। कैफ दिल में कोसते हुए बोला, उदास और वो भी अब्बा होगा, शुक्र करेगा मैं दफा हो रहा हूँ। इसका भाई उसे रोती आंखों से हाथ हिलाकर बाय बाय करता रहा। कैफ को लगा कि जैसे उसका अब्बा भी उदास है और आंखें भी गीली हैं, और अब्बा भी उसे बाय बाय करता रहा। कैफ बाइक पर बैठा खुश हो रहा था कि कितना मज़ा आएगा, अपनी आज़ादी से रहेगा। अब्बा इधर इसे सुबह से रात तक कोसने के लिए नहीं होगा। जहाँ मर्जी जाएगा आएगा। अब्बा पूछने वाला नहीं होगा कि कहाँ गए थे। पूरा वीक वो सारा दिन सोकर गुजारेगा। अब्बा तो उसे 10 बजे ही सलवातों के साथ जगा देते थे। इसके नाम ही जमाने भर का ढीठ, कामचोर, नकम्मा और सुस्त रखे हुए थे। कैफ जब पैदा हुआ तो दादा और दादी का बहुत लाडला था। दादा उसे खेतों में साथ साथ लिए फिरते और किसी को भी उसे डांटने न देते थे, ना कोई काम कहने देते। दादी उससे भी बढ़कर उसके नाज उठाती। किसी की मजाल न थी कि कोई उसे कुछ कह सके। स्कूल में या घर से बाहर अगर उसे कोई कुछ कहता तो दादा दादी दोनों इन बच्चों को डांटने चल पड़ते। फिर इसकी बहन पैदा हुई तो इस पर दादा दादी फिदा ना हुए, बल्कि बहन पर कैफ को फोकियत देते। घर के किसी काम को करने की इसे इजाज़त न थी। कैफ का अब्बा माँ बाप से कहता रहता कि आप लोग इसे नकम्मा और सुस्त बना देंगे। ये के बाद दीगरे इनकी वफात के बाद तक कैफ की काम न करने की आदतें पक्की हो चुकी थी। माँ भी भोली भाली औरत थी, इसीलिए वो जो डर सास ससुर का उसके दिल में गामजन था, वो इसी डर की वजह से कैफ को सब बच्चों से ज्यादा अहमियत देती थी। बाप शोर करता रहता मगर कैफ पर अब कोई असर न होता था। इसका छोटा भाई जो सबसे छोटा था और वो इसकी छोटी बहन जुड़वा थे। कैफ का छोटा भाई बचपन से ही बहुत फुर्तीला था। भाग भाग कर शौक से घर के काम करता था। उसे काम सीखने का भी बहुत शौक था। वो बाप के साथ खेतों में काम करवाने जाता। घर में भी जानवरों की देखभाल भी वही करता था और माथे पर शिकन तक न लाता था। हर वक्त गुनगुनाता और खुशगवार मूड में रहता था। कैफ से छोटी बहन बहुत संजीदा मिजाज लड़की थी, बहुत कम बोलती थी। माँ ने करीबी सेंटर से सिलाई सिखा दी थी। अब वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सीती थी। एक करीबी यूके की फैमिली थी, उनको उसके सिले कपड़े बहुत पसंद आते थे, तो ज़्यादातर वही लोग यूके भी सिलवा कर काफ़ी जोड़े भेजते रहते थे। उससे उससे अच्छी आमदन हो जाती थी और वो सारे सिलाई के पैसे माँ को दे देती थी। कभी भी ये ना कहती कि मैं इतने दिन रात मेहनत करके सिलाई करती हूँ और मुझे इसके बदले क्या मिलता है। वो यूके वाली आंटी उसके लिए कभी कभार तोहफे भेज देती थी, जिससे वो खुश हो जाती थी और इनमें से भी कभी माँ और कभी छोटी बहन को दे देती थी। छोटी बहन भी अपने जुड़वा भाई की तरह काफ़ी चुस्त थी। भाग भाग कर सारे काम खामोशी से अच्छे मूड में करती रहती थी। वक्फे वक्फे से बहन को खाना चाय पानी भी पहुंचाती रहती कि उसे यूके वालों के 40-40 सूट भी जल्दी सीकर उनको देने होते थे। कैफ कॉलेज जाता, कपड़े उसे धुले और इस्त्री शुदा मिलते। खाना चाय पानी तक उसे उसके कमरे में पहुंचाया जाता। वो नेट पर यूट्यूब लगाए रखता और एंजॉय करता रहता। घर के कामों में उसे कोई सरोकार नहीं होता था। अपने कमरे का दरवाज़ा हर वक्त बंद रखता था। बाप चाहता था कि अब चूंकि वो पढ़ाई से भी फारिग हो चुका है, गांव में बस 14 क्लासों तक ही स्कूल था। बाप इसकी देर तक सोने की आदत की वजह से उसे लान तान करता रहता। कोई कामकाज नौकरी वगैरह करने का बोलता रहता,
मगर कैफ की एक ही जिद थी कि वो गांव में नौकरी नहीं करेगा बल्कि शहर जाकर करेगा। बाप इसकी जिद से परेशान रहता और सबके सामने बेइज्जत करता रहता। इस बात से कैफ को शर्मिंदगी होती कि अब्बा किसी आए गए का भी ख्याल नहीं करता। फिर वो नाराज होकर कमरे में बंद हो जाता, खाना भी न खाता। फिर माँ बहनें मिन्नतें कर करके उसे खाना खाने पर इसरार करती। अंदर से उसे भूख शदीद लगी होती, मगर अकड़ और जिद आड़े आ जाती। वो जानता था कि उसकी माँ बहनें उसे भूखा नहीं सोने देंगी। वो खाना लेकर आती तो काफ़ी नखरे दिखाता और इन पर एहसान चढ़ाने वाले अंदाज में खाना खाता, और फिर भी दूसरे दिन भी नाश्ता भी मिन्नतों से करता। फिर नहा धोकर तैयार होकर निकल जाता। उसका अब्बा कहता, रहने दो इसे भूखा, जब भूख सिताएगी तो खुद ही उठकर खा लेगा। तुम लोग इसको सर चढ़ाते हो, मिन्नतें करते हो, इसीलिए वो नखरे दिखाता रहता है। वो जाने लगा तो अब्बा फिर कुछ कह देता कि बाबू बनकर अब अपने जैसे आवारा लफंगे दोस्तों के पास जा रहा है वक्त बर्बाद करने। माँ अब्बा को टोकती, अब बस भी कर दें, हर वक्त इसके पीछे पड़े रहते हैं। वो माँ बाप को बहस करते छोड़कर निकल जाता। अम्मा कहती, मुश्किल से इसका मूड सेट हुआ है, आप फिर खराब करने लगे हैं। वो ये सुनकर खुश होता कि उसके मूड की भी कोई अहमियत है। वापस आता तो नॉर्मल होता। उससे अपने अब्बा की सबके सामने बेइज्जत करने की आदत से चिढ़ थी, मगर उसके अब्बा को इस बात का कभी ख्याल ना था कि इस तरह बच्चा कभी नहीं सुधरता, बल्कि और ढीठ और जिद्दी हो जाता है। वो समझता है कि शायद बाप को उससे कोई प्यार नहीं है बल्कि नफरत है। इसी गलत फहमी में वो भी फिर चिड़चिड़ा और बदमिजाज हो जाता है। फिर वो माँ बहनों पर धौंस जमा कर अपनी शर्मिंदगी को दूर करने की कोशिश करता है। वालिदैन को चाहिए होता है कि अपनी औलाद की इज्जत करें और दूसरों के सामने इसकी बुराइयां न गिनवाएं। फिर दूसरे उसे राई का पहाड़ बनाकर बदनाम कर देते हैं। फिर इन बुराइयों का पूरे खानदान में डंका बजने लगता है और खानदान वाले इसे खोटा सिक्का समझकर अहमियत नहीं देते, ना ही इज्जत करते हैं, और इसे रिश्ता देने से भी कतराते हैं, चाहे वो इसकी आर्जी जिद या बुराई ही हो। ऐसे बच्चों की कोई भी इज्जत नहीं करता जो अपने बच्चों को दूसरों के सामने इज्जत देते हैं और उनको अच्छाइयाँ बयान करते हैं और खामियों पर पर्दे डालते हैं। तो इन बच्चों की फिर सब इज्जत करने लगते हैं। किसी की जरूरत नहीं होती इनकी बेइज्जती करने की, और उनके दिल में उनके उत्साफ बैठ जाते हैं और वो उन्हें अच्छा समझते हैं। मगर वालिदैन अक्सर ये समझते हैं कि औलाद हमारी प्रॉपर्टी है, हम इनको जैसे चाहें सलूक करें, मारें पीटे या बेइज्जत करें, ये हमारी चीज़ है, हमारा इन पर पूरा हक है। मगर औलाद भी सहना नहीं जानती, उसकी भी दिली ख्वाहिश होती है कि उनकी भी इज्जत की जाए, उन्हें अहमियत दी जाए। घर के हर मामले में उन्हें बाखबर रखना चाहिए ताकि वो भी इस तरह घर के मसाइल को समझने लगते हैं और फिर उनके दिल में एहसास भी जागता है। इसी ख्वाहिश का इजहार कैफ की माँ से कितनी बार किया कि अब्बा को समझाएं कि मुझे किसी के सामने मत कुछ कहा करें, हत्ता कि मेरे अपने छोटे बहन भाइयों के सामने भी। अकेले में बेशक मुझे मार मार कर मेरा खून निकाल दें। कैफ बाइक पर इतना लंबा सफ़र करके थक चुका था, ऊपर से इतना बड़ा बैग भी उसने उठाया हुआ था। कमर उसकी दोहरी हो चुकी थी। मगरिब के करीब वो लोग पहुंचे। चाचा ने अपना थैला अपने कमरे में रखा और मौलवी साहब को फ़ोन कर दिया। उन्होंने कहा, ले आओ लड़के को। चाचा ने उसे मौलवी साहब और उसकी बीवी से मिलवाया। मौलवी साहब तो उसे अकड़ो मिजाज के लगे, मगर उनकी बीवी अच्छी आदत की थी। कैफ ने सामान रखा और चाचा ने उसे कमरे की चाबी दी और बोले, चल तुझे खाना भी खिलाता हूँ और मार्केट भी दिखाता हूँ, फिर सुबह तुझे कपड़े की दुकान के मालिक से भी मिलवा दूंगा। चाचा उसे करीबी मार्केट दिखाता रहा। मोहल्ला था, छोटी मोटी दुकानें थीं, एक छप्पर होटल था। चाचा उसे होटल के अंदर ले गया और पूछा, बोल पुत्र क्या खाएगा। वेटर लड़का चंद चीज़ों के नाम तेज तेज गिनवाने लगा तो कैफ ने मटर कीमे की फरमाइश कर दी। चाचा थोड़ा सा पहलू बदल कर रह गया। चाचा ने अपने लिए दाल माश मंगवाई। कैफ को भूख भी शदीद लगी हुई थी। जाने की खुशी में उसने खाना भी थोड़ा सा ही खाया था। गरम गरम तनूर की रोटियां वो लाई जा रहा था और वो कीमा मटर साथ चटनी और सलाद था। उसने चाचे को कीमा खाने की ऑफर की तो वो खुशी से उसके साथ खाने लगा। चाचा कीमा ज्यादा खाने लगा और कैफ को फिर दाल खानी पड़ी, पर उसे दाल भी मज़ेदार लग रही थी। लड़का पूछने आया कि कोई बोतल चाय वगैरह चाहिए। चाचा ने कैफ की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो कैफ झट बोला, हाँ मुझे स्प्राइट चाहिए।
चाचा ने कहा, मैं बाद में चाय पीऊंगा, मेरे लिए ना लाना। लड़का स्प्राइट ले आया तो कैफ साथ पीने लगा। उसने मुरव्वत में चाचा को ऑफर की तो उसने एकदम कहा, चलो एक घूंट चखता हूँ। एक घूंट के बदले वो आधी बोतल पी गया। खाना खाने के बाद कैफ खुशी से बोला, चाचा लुत्फ आ गया खाने का, मैं तो रोज इधर ही आकर खाया करूंगा। चाचा हंसकर बोला, शुरू शुरू में मुझे भी बड़ा लुत्फ आता था, अब मजबूरी खाता हूँ कि पेट का दोजख तो भरना ही है ना। चाचा चाय पी रहा था। कैफ ने कहा, चाचा चाय मुझे भी मंगवा दो, बड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है। चाचा ने हैरत से उसे देखकर कहा, ठंडी बोतल के ऊपर चाय। कैफ ने हैरत से सोचा, आधी बोतल तो चाचा खुद पी गया था और मुझे कह रहा है। कैफ ने कहा, चाचा कोई बात नहीं, थकन हो गई है, अच्छा है उतर जाएगी। खाने के बाद कैफ ने बिल देखा तो बोला, वाह चाचा, इतना कुछ खाया पिया और इतना थोड़ा बिल, टिप भी देने का रवाज नहीं है। चाचा बाहर निकलकर हंसते हुए बोला, बेटा कतरा कतरा दरिया बन जाता है। बेटा तेरी जितनी यहाँ आमदन होगी उससे कहीं ज्यादा इधर तेरे खर्चे खुले होंगे, इसलिए एक एक रुपया सोच समझकर खर्च करना। यहाँ एक किस्म का तू परदेश में बैठा हुआ है, किससे उधार मांगेगा? उधार भी कभी कोई नहीं देता। यहाँ तू अपने घर में नहीं बैठा हुआ कि खाने पीने और दूसरे खर्चों से बेफिक्र होकर रहेगा। यहाँ तुझे वक्त पर कमरे का किराया भी अदा करना पड़ेगा, वरना मालिक मकान तेरा सामान उठा के तुझे बाहर फेंक देगा या बाहर खड़ा होकर बेइज्जत करेगा। और बिजली का बिल भी वक्त पर देना और सुबह वक्त पर काम पर जाना, वरना लोग काम पर से भी निकाल देते हैं। और नई नौकरी भी जल्दी मिलना आसान नहीं है, लोग गारंटी मांगते हैं। नए लोगों पर कोई जल्दी एतबार नहीं करता। कल सुबह 7:30 बजे तक तैयार रहना, उसने इतने बजे ही बुलाया है, ऐसा ना हो देर करो तो वो किसी और को रख ले। और अब चलो अपने कमरे में, शुक्र करो कि तुम्हें सामान लाने की टेंशन नहीं है। मालिक मकान ने किराए में भी उसका हिसाब किताब रख दिया है और उनके सामान को एहतियात से इस्तेमाल करना, अगर ख़राब हो जाए तो ये लोग नए सामान जितनी कीमत वसूल करते हैं। मैंने इस कमरे की सिक्योरिटी और पहला एडवांस किराया तेरे अब्बा से लेकर दे दिया है। कैफ हैरान हुआ कि अब्बा ने दिया है? वो तो समझा था कि जाएगा रहेगा और महीने बाद जब नौकरी करके तनख्वाह मिलेगी तो देगा। उसे इन सब बातों का तजर्बा नहीं था। उसको तो चचा ने ये बताया था कि अमूमन कमरा खाली ही मिलते हैं, इसमें अपना सामान रखना पड़ता है। मगर तेरी खुशकिस्मती है कि सामान समेत वाला कमरा खाली मिल गया। अगर यहाँ से शिफ्ट हुआ तो सामान वहाँ अपना रखना पड़ेगा। चल अब घर वालों को फ़ोन कर ले, वो परेशान हो रहे होंगे। कैफ ने फ़ोन किया तो जैसे सब इंतज़ार में बैठे हुए थे। उन्होंने फ़ोन खुद नहीं किया कि उसने सख्ती से सबको मना किया था कि जब तक मैं खुद फ़ोन ना करूं मुझे कोई फ़ोन करके डिस्टर्ब ना करे। मैं जब मुनासिब समझा करूंगा कर लिया करूंगा। वैसे वो चचा के घर से पता करवा चुके थे तो इनके घर वालों ने बता दिया था कि वो लोग पहुंच चुके हैं और अब होटल खाना खाने गए हैं। कैफ के घर वालों को कदरे तसल्ली तो हो चुकी थी, मगर फिर भी जब तक खुद उसकी आवाज़ न सुन लेते मुतमईन नहीं हो रहे थे। स्पीकर ऑन था, सब बोलने की कोशिश कर रहे थे। पीछे से अब्बा भी बार बार पूछने की कोशिश कर रहे थे कि पूछो कमरा मिल गया, अंदर ज़रूरत का सब सामान मौजूद है ना, वगैरह वगैरह। वो हैरान हो रहा था कि अब्बा को भी इसकी फ़िक्र हो रही थी। कैफ खूब मज़े लेकर खुशी से खाने पीने का अहवाल सुना रहा था। अम्मा खुश होकर बोली, लगता है पुत्र तू बहुत खुश है वहाँ। हम सब ने अभी तक खाना भी नहीं खाया कि पहले तेरी तरफ से मुतमईन हो जाए। उसने एकदम पूछा, अब्बा ने खाया? तो अम्मा बोली, नहीं पुत्र। वो बड़ा हैरान हुआ क्योंकि अब्बा तो खाना लेट करते ना थे, वक्त पर खाते थे, वरना शोर मचा देते थे। कैफ ने सबको खुदा हाफिज कह दिया। दिल कुछ उदास होने लगा था। उसने सबको ये कहकर तसल्ली दिलवा दी थी कि कमरे का पूरा सामान मौजूद है ताकि वो लोग फिक्र न करें। माँ कह रही थी, तू पहली बार सबसे दूर गया है, वैसे भी तू सबका लाडला है, तो सब इसलिए परेशान हो रहे थे। वो बहाना बनाते हुए बोला, अम्मी अब मैं सोने लगा हूँ, आप लोग खाना वगैरह खा लें। माँ ने कहा, ठीक है पुत्र, अपना ख्याल रखना। कैफ ने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर पहले तक तो कैफ बहुत खुशगवार मूड में था, मगर अब दिल कुछ उदास सा हो रहा था। कमरे का साजो सामान देखकर वो हैरान था। एक कोने में लोहे की एक चारपाई जिस पर एक पतला सा रुई का गद्दा बिछा हुआ था। एक दीवार पर कपड़े टांगने के लिए चंद बड़ी कीलें लगी हुई थी। सख्त सा तकिया था। एक कोने में चूल्हा और चंद बर्तन पड़े हुए थे। इस घटिया पुराने साजो सामान को देखकर ही उसका जी मतला रहा था,
मगर क्या करता, इसी बेड पर लेट गया और सोचने लगा वो यहाँ कैसे रहेगा। माँ ने जो पैसे दिए थे वो तो बामुश्किल पूरे होंगे। चाचा के पास भी इतने पैसे न थे। उसने बताया था कि आज खाने पर जितना खर्च किया है कल शायद चाय रस पर गुजारा करना पड़े। सोचते सोचते वो सो गया तो सुबह 7:45 आंख खुली। इधर से चाचा दरवाजे पर पहुंच गया तो कैफ जल्दी से बैग से कपड़े निकालने लगा। शुक्र है उसकी बहनों ने कपड़े प्रेस करके डाले थे। चाचा बाहर से चला रहा था, तुझे कहा था वक्त पर तैयार हो जाना और पहले दिन ही तू लेट हो गया। चाचा बोला कि रोज अगर तू 7:30 बजे तक तैयार होगा तो तुझे बाइक पर छोड़ दिया करूंगा। अगर लेट हुआ तो चला जाऊंगा, क्योंकि मैं लेट हुआ तो वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। जब वो लोग दुकान पर पहुंचे तो मालिक फुल दाढ़ी वाला बाबा था। चाचा ने उससे कहा कि जनाब ये बच्चा है। वो बाबा उसे देखते हुए बोला, ये तो मुझे कोई नवाब का बच्चा लगता है, पहले रोज ही लेट आया है, ये क्या काम करेगा। चाचा ने कहा, जनाब रात को गांव से पहुंचा है, पहली बार शहर में नौकरी करने के लिए आया है। वो बाबा चिल्ला कर बोला, हर कोई पहली दफा ही काम शुरू करता है, हमने भी पहली बार ही शुरू किया था। चाचा फिर सिफारिश करते हुए बोला, जनाब इसका कसूर नहीं है, ये तो तैयार खड़ा था, मेरी वजह से लेट हुआ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। उसने तो जाने की जल्दी में नाश्ता भी नहीं किया। पुत्र चाय के साथ कुछ खा लेना, ये कहकर चाचा चला गया। कैफ हैरान हो रहा था कि गांव से भागा कि अब्बा की बातें न सुननी पड़े, और यहाँ आया तो इस दुकानदार बाबे की झाड़ सुननी पड़ी। सुबह ही सुबह इसका मूड ऑफ हो गया तो बाबे ने इसे डांट कर कहा, ओ नवाब के बच्चे, इधर आराम करने आया है क्या? चल पहले दुकान की सफाई सुथराई कर, फिर काम समझ। कैफ का जी चाहा कि यहाँ से फौरन भाग जाए, मगर अब्बा की बातें गैरत दिलाने लगी कि ये एक हफ्ता भी शहर में टिक गया तो बताना, जिसे नवाबों की तरह हर चीज़ तैयार मिले तो वो शहर में जाकर मुश्किल नौकरी क्यों करेगा। इसने सोचा इधर कौन उसे देख रहा है। वो खड़ा होकर ब्रश से फर्श साफ करने लगा। वो बहन को कभी कमरे से इस तरह लगाते देखता था। दुकानदार बाबा उसे टोकता रहा कि यहाँ से भी करो और अब झाड़ पूंछ भी करो। कैफ थक कर बैठ गया, उसे भूख भी लग रही थी, मगर दुकानदार बाबे ने बामुश्किल चाय मंगवाई और एक बिस्किट का छोटी टिक्की पैक दे दिया। कैफ का इसे खाकर कुछ न बना। कुछ औरतें आती और लेती कुछ भी नहीं, बस थान खिलवा खिलवा कर काम बढ़ा कर चली जाती। उसे सख्त गुस्सा आता। वापसी पर चचा उसे साथ रात को ले जाता। रोज अब उसे सख्त मसाइल का सामना करना पड़ता। माँ का जबरदस्ती का दिया हुआ साग उसे नेमत लगा। रात को थकन से होटल से खाना लाने की होश न होती। फिर कुछ दिन माँ की बैग में डाली हुई मूंगफली वगैरह से काम चलाने लगा। मालिक ने महीने से पहले छुट्टी देने से इनकार कर दिया और उसे संडे को भी जाना पड़ता। मालिक ने कहा कि महीने के एंड पर 4 छुट्टियां इकट्ठी दूंगा। उसे अब आदत हो गई थी। ऊपर से मौलवी की बीवी कभी कुछ भेज देती तो वो उसके लिए मनोसलवे से कम न लगता। वो बैठक का दरवाज़ा अंदर से खुला ही रखता, क्योंकि मौलवी की बीवी सफाई करवा देती थी। उसकी 3 बेटियां थीं, मगर वो कैफ से पर्दा करती थी। कैफ को भी उनसे कोई दिलचस्पी न थी। मौलवी साहब और उनकी बेगम कैफ की शराफत की तारीफ करते थे। घर फ़ोन करके माँ को तसल्ली देता कि मैं बहुत खुश हूँ, आप लोग मुझे फ़ोन करके मेरी खुशियाँ ख़राब न किया करें। घर वाले ना करते जब तक कि वो खुद ना करता। कैफ को अब बाबे दुकानदार की बातें सुनने की आदत हो चुकी थी। उसके कपड़े मैले हो चुके थे। उससे अब माँ बहनों और घर की बहुत कदर आ रही थी। उसके अब्बा ने कहा था कि ये कामचोर और सुस्त है, देखना ज्यादा वक्त इधर नहीं रह पाएगा। उससे अब अपना घर जन्नतुल फिरदौस लगने लगा था। उससे अपने बूढ़े बाप की मेहनत का भी एहसास होने लगा कि वो अकेला सारे काम करता है और छोटा भाई मुमकिन हद तक बाप की मदद कर सकता है। होटल की रोटी उससे अब खाई ना जाती थी, चाय उससे पी ना जाती। माँ की शक्कर वाली चाय याद आने लगती। सब घर वाले मेहनत करके घर का अच्छा गुजारा चला रहे थे, सिर्फ इसी को अक्ल न थी। अब वो अपनी तनख्वाह का इंतजार कर रहा था कि ये मिले तो वो वापस अपनी जन्नत में चला जाए और बाप के काम को संभाले। लोगों की डांट खाने से बेहतर है अपने बाप की सुन ले, जिसमें उसके लिए प्यार और बेहतरी छुपी होगी। यहाँ दुकानदार बाबा खाना भी मंगवाता तो ऐसे जैसे एहसान कर रहा है। 3 रोटियां मंगवाता और कहता मैंने तो एक ही खानी होती है, और 1 प्लेट सालन, वो भी ज्यादातर दाल सब्जी होती। जब उसके साथ खाने बैठता तो 1.5-2 रोटियां खा जाता और कैफ का पेट न भरता। वो दिन गिन रहा था। उसके लिए महीना पूरा करना भी अजाब लग रहा था।
चाचे का मालिक मकान उससे कमरा खाली करवा रहा था तो चाचा को कैफ ने अपने कमरे में बुला लिया। चाचा सामान रखकर गांव छुट्टी चला गया तो एक दिन मालिक मकान की बेटी रोती हुई सुबह आ गई कि प्लीज उसे अपने कमरे में छुपा लो, मेरा बाप मुझे मार देगा। कैफ ने तरस खाकर उसे छुपा लिया और खुद बाहर निकल गया। उसने रात को वापसी पर सोचा कि अब तक वो चली गई होगी। जब घर पहुंचा तो मौलवी साहब की तीनों बेटियां दुल्हन बनी उसके कमरे में बैठी हुई थीं। इसके पांव तले से जमीन निकल गई तो मौलवी की बीवी ने माजरत करते हुए कहा कि तुम्हारी इजाजत के बगैर कमरा इस्तेमाल किया। दरअसल इन तीनों का निकाह करना था। तीनों भाई हैं और इधर मेरी 3 बेटियां मेरे सगे भांजे हैं, मगर मौलवी साहब इनकी शादी अपने नलायक नखट्टू भतीजों से करवाना चाहते थे। आज वो दूसरे शहर निकाह पढ़वाने गए हैं तो मैं इनकी इन निखट्टे लड़कों से जान बचाने के लिए रुखसत कर रही हूँ। अगर उन्होंने मुझे रखा तो ठीक, वरना भांजे मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे। कैफ ने अपना सामान समेटा, तनख्वाह उसे मिल चुकी थी। बाकी चाचा कह रहा था कि वो उस कमरे में शिफ्ट होकर किराया देता रहेगा। वो मौलवी साहब के घरेलू झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए जल्दी से निकला ताकि जल्द अज जल्द अपनी जन्नत में वापस चला जाए। अब्बा उसे ताने देगा, कोई बात नहीं, मगर वो अब इस पर साबित कर देगा कि वो हर काम कर सकता है। अब्बा को कुछ करने ना देगा। लोगों के झाड़ू फेरने और बातें सुनने के बावजूद गुलामी करने से बेहतर है कि अपने प्यारों का दस्ते बाजू बनूं। उससे अपने किरदार से शर्म आ रही थी कि उसकी बहन अपने वालिदैन का कपड़े सीकर सहारा बनी हुई थी और सारे पैसे माँ को देती थी। वो ये तनख्वाह अब्बा को देगा। उसने चाचा को खुफिया तौर पर बता दिया था कि वो अपनी जन्नत के बगैर नहीं रह सकता है। घर जाकर सबको सरप्राइज देगा। कितने दिनों बाद वो घर का खाना खाएगा। उसके मुंह में पानी आ गया। जब वो घर पहुंचा तो अब्बा बीमार था। उसे देखकर नकाहत से बोला, क्या तू वापस नहीं आ सकता? वो अब्बा के पाँव को छूते हुए बोला, अब्बा मैं अब वापस नहीं जाऊंगा और ना ही आपको कोई काम करने दूंगा। सारा काम मैं खुद करूंगा, अपनी जन्नत में रहूंगा। सब भागते रोते हुए उसके साथ लिपट गए और उसको भी सबसे मिलकर सुकून महसूस हुआ। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।